Good morning, students. Today we will discuss managerial roles and functions in a small business. Under this heading, first of all, we will discuss the meaning of management. Then we will see nature of management. Then we will discuss management functions and subsequently we will discuss managerial roles. So, to begin with the meaning of management. As you would have studied number of times, management is the art of getting work done through others. Management is done by the human factor of production and it is this factor of production जिसे बाकी के factor of production से काम लेना होता है. इसमें भी मैनेजमेंट क्या करती है, दूसरे फैक्टर से भी और मैन पावर से भी काम लेने का काम करती है, इसीलिए इसे हम मैनेजमेंट बोलते हैं. या फिर वी कैन डिफाइन दिस एज इट इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. ये सभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं जो कि हम सब्सिक्वेंटली डिटेल में पढ़ेंगे. कंटिन्यूअस फंक्शन इसलिए कहा गया क्योंकि एक बार ये फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, कंट्रोलिंग होने के बाद फिर से प्लानिंग किया जाता है, फिर से ये सेट ऑफ फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं एंड सो ऑन. So this is the meaning of management, which says it is the art of getting work done through others or a continuous function of planning, organizing, directing and controlling. On the basis of meaning, we can have nature, features or characteristics of management, which include following points, which we will discuss one by one. Like the first one is continuous process. Management is a continuous process of planning, organizing, staffing, directing and controlling. Once a set of these functions are performed, then again this cycle starts. So this is a continuous process. Second, universal. Management is a function which is performed in all types of organization, small or big, financial or non-financial, banking or non-banking, etc. That's why it is universal. Third is comprehensive. Comprehensive इसलिए कहा गया क्योंकि management function is performed at all levels of business. Top level, middle level and lower level. Fourth is object oriented. Management works for the predetermined objectives. The objectives of organizations are met with the help of management. Next is art as well as science. Management is an art because it uses certain skills and a science because it has certain principles. Next, decision making. Management involves decision making. Since resources are limited and wants are unlimited, business every time needs to make some decision that a particular action is to be followed. So this is done by the management only. These are the features of management. After the features, we will discuss management functions. As we have stated in the heading, management functions in a small business. And as we have discussed in the features, that these are universal. So, management functions are universal. चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो या छोटा हो, उनमें ये 5 फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं. जैसे फर्स्ट हमारा आता है प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ फंक्शन इज कंट्रोलिंग. वी विल डिस्कस दीज फंक्शंस वन बाय वन. Like first one is planning.
Planning is the first and foremost function of management. It is looking forward. It is an intellectual process of selecting the best course of action from the all available alternatives. It is said to be looking forward as planning is done for future and future is uncertain. इसीलिए इसे लुकिंग फॉरवर्ड फंक्शन कहा गया. प्लानिंग हेल्प्स इन डिसाइडिंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, बाय whom it is to be done and why it is to be done. Planning bridges the gap between where we are and where we want to be. Planning involves various elements like objectives, programs, policies, strategies, rules and procedures and budgets. Planning process involves various steps like the very first one is establishing objectives. Objectives provide the direction to the working of the organization. So in the planning process, first of all, objectives are set, which should be clearly defined, which should be practical, which should be attainable. Second step in planning is establishing planning premises. Planning premises refers to the key factors which limit the operations of the business. It may be raw material, it may be finance or any other thing. Third step in planning is deciding the time frame. जिस टाइम फ्रेम के लिए हमें प्लानिंग करनी है, शॉर्ट या लॉन्ग. देन वी हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव. एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसलिए प्लानिंग में भी डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर किया जाता है, जिसकी हेल्प से प्लानिंग को अचीव किया जा सकता है. नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव. इसमें जितने भी अल्टरनेटिव्स हमने एक्सप्लोर किए हैं उनको हम कॉस्ट एंड बेनिफिट वाइज इवैल्यूएट करते हैं और जिन अल्टरनेटिव्स में बेनिफिट ज़्यादा होते हैं उन्हें हम सेलेक्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज डेवलपिंग सपोर्टिव प्लान्स. एक मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के बाद उसको फॉलो करने के लिए वेरियस सब्सिडरी प्लान्स बनाए जाते हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट प्लानिंग, जैसे कि मार्केटिंग प्लानिंग, जैसे कि फाइनेंस प्लानिंग एटसेट्रा. एंड फाइनली द लास्ट स्टेप इन प्लानिंग इज फॉलो अप, कि हमने जो भी प्रीवियस स्टेप्स में काम किया है उसे चेक करना कि वो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है. तो प्लानिंग में जो हमने स्टेप्स किए उसे मैं ब्रीफ कर रही हूँ, जिसमें फर्स्ट हमारा आता है एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, थर्ड डिसाइडिंग द टाइम फ्रेम, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, then evaluation and selection of alternatives, developing supportive plans and follow up. Second function of management is organization. Organizing refers to dividing the organizational activities in different parts and then grouping similar activities under one head. ऑर्गेनाइजिंग में जो हम स्टेप्स इंक्लूड करते हैं इसमें 4 स्टेप्स हमारे आते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है कंसीडरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है और उसको अचीव करने के लिए क्या क्या प्लान हमने बनाए हैं. सेकंड इसमें आता है आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़. इसमें हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या काम करने की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं
उनको आइडेंटिफाई करने के बाद सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया जाता है। इसे हम डिपार्टमेंटेशन भी बोलते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, जैसे HR डिपार्टमेंट। तो इसमें हम डिपार्टमेंटेशन क्रिएट करते हैं। सिमिलर एक्टिविटीज़ जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है उसे हम ग्रुपिंग कर देते हैं। थर्ड स्टेप में हमारा आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, कि जो भी हमने वर्क आइडेंटिफाई किए हैं उसे डिफरेंट पर्सन्स को उनकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स के अकॉर्डिंग असाइन कर दिया जाता है। एंड लास्ट स्टेप इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी की हेल्प से एक पर्सन काम को कंप्लीट कर सकता है। अथॉरिटी इज द पावर टू डू थिंग्स। तो जो काम प्रीवियस स्टेप में उनको दिए गए हैं वो अथॉरिटी की हेल्प से ही कंप्लीट हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ 4 स्टेप प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट इज कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, थर्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड फोर्थ इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व है। इसमें हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करते हैं जो कि ऑलरेडी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स में लाइक वन इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, देन वी हैव लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें अथॉरिटी वर्टिकल फॉर्म में फॉलो करती है, यानी टॉप से बॉटम फॉलो करती है। नॉर्मली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में लाइन ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो किया जाता है। वैसे तो ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसमें रिजिडिटी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में अलॉन्ग विद द लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन में हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन इससे कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर दिया जाता है। इसमें भी हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि ओवरलैपिंग हो जाती है काम की। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात करें तो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन में कमेटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स परफॉर्मिंग अ ग्रुप टास्क with the object of solving certain problems। तो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जिसमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कमेटी ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज स्टाफिंग। Staffing is a process of selecting and placing the right persons at the right position in the organization। इसमें हम इंक्लूड करते हैं मैन पावर प्लानिंग को, रिक्रूटमेंट को, सिलेक्शन को, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल को। नेक्स्ट फंक्शन इज डायरेक्टिंग। Directing is related with instructing, guiding and inspiring manpower in the organization in order to achieve organizational objectives। Directing में हम include करते हैं supervision, leadership, motivation and communication को। Last step of management is controlling। Control is a check process to determine whether or not objectives or goals of organization are achieved as they were planned। इसमें जो steps हम include करते हैं, first is establishment of performance standards, जो कि रियलिस्टिक होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए। सेकेंड इज मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड्स। इस स्टेप में एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स इज डन
and is compared with the standards. ये इसलिए किया जाता है जिससे हमें डिविएशंस का पता चले कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. लास्ट स्टेप इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन. प्रीवियस स्टेप में जो हमें डिविएशंस मिली, कमियां मिली, उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना जिससे जो अभी डिविएशन रह गई हैं वो फ्यूचर में अकर ना हो. So these are the various functions of management. These management functions are performed in the functional areas of production, marketing, finance and accounting, and personnel. So these are the information about management functions. Next heading we will discuss managerial roles. These are grouped under 3 headings. First is interpersonal roles, second is informational roles, and third is decisional roles. इंटरपर्सनल रोल्स में हम इंक्लूड करते हैं जिसमें मैनेजमेंट इज सपोज टू कम्युनिकेट विद द पर्सन्स विदिन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हम सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स, पीयर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स को इंक्लूड करते हैं. सेकेंड इज इंफॉर्मेशनल रोल्स. In order to fulfill the interpersonal roles, the management requires various types of information. So management has to gather, analyze various types of information from various sources. Last role is decisional roles. The management needs to take various decisions in order to fulfill previous 2 roles as well as give solution to various problems of the business from time to time. So these are the 3 managerial roles. So we are done with the main heading, that is managerial roles and functions in a small business, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया, उसका नेचर डिस्कस किया, मैनेजमेंट फंक्शंस को डिस्कस किया एंड मैनेजरियल रोल्स को डिस्कस किया. थैंक यू.